रशिया के मिसाइल अटैक ने कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। इस फैक्ट्री में जहां पर हम मौजूद हैं, ये फिशिंग सेलिंग फैक्ट्री है, फिशिंग सप्लाई करती है और बताया जाता है कि इसी फैक्ट्री में जहां 500 टन के फिश को सप्लाई किए जाने थे। लेकिन आज की परिस्थिति देखें, मार्च में हुए रशिया के ओर से किए गए मिसाइल अटैक के बाद ये पूरी जगह को अगर हम देखें तो किस तरीके से इसको पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है। यहाँ पर करीबन 120 लोग काम करते थे और उनकी रोजाना जो खाने की या फिर डेली वेजेस जो है वो इसी फैक्ट्री के जरिए, उनका जो घर चल रहा था वो इसी फैक्ट्री से चल रहा था। लेकिन रशिया के एक मिसाइल ने कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। एक जो सपने लेकर वो इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं तबाह हो गई है। मैं पूरा विजुअल्स इस फैक्ट्री का दिखाना चाहूंगी। सुबह 4 बजे रशिया के ओर से किए गए इस फैक्ट्री पर अटैक, जो मिसाइल अटैक करने के बाद किस तरीके से ये मजबूती जड़ से बनाई गई कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब इसको वापस से बनाना, यहाँ के लोगों की से बात की गई तो बताया कि बनाना मुश्किल नहीं लेकिन नामुमकिन है। 500 टन का फिश यहाँ पर फ्रोजन फिश को सप्लाई कर रही थी ये फैक्ट्री, जिसके बाद पूरी तरीके से तबाह हो गई है। कुछ लोगों से बात जरूर करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे भी जानना सबसे ज्यादा अहम है कि क्या चीजें हुई थी। If you can tell us what exactly has happened and when does this happen and what was the situation that point of time, how many people were there at this factory? Все то же самое, да. Сколько было людей, когда случилось? Случилось это 12 марта в 4 часа 10 минут утра. Была только охрана. Как раз находился охранник в дальнем конце территории. Слава богу, он выжил. Ни один человек не пострадал, так как это было в утренние часы. Ну, то, что после разрушения вы видите, воочно все осталось. Здесь было все в конструкциях, в продукции. Здесь было 500 тонн рыбы свежемороженой, 100 тонн готовой продукции, здесь были конструкции, все было навалено. Ну вот как раз вот сегодня, спустя какое-то время, мы немножко все это дело убрали, навели порядок. Okay, let me translate. So it all happened on 12th of March in early morning. So this is the fish factory. You can see it was the big storage place for more than 500 tons of production. And luckily at that time at 4 in the morning, that was only the security guy who was there, the only one. So nobody luckily was damaged. So it only hit it here, the biggest Russian rocket missile. So the whole destruction, as you can see, is more than 500 tons of fish gone, and so more than 100 millions of grivnas are burned here, as you see. मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है कि 12 मार्च को सुबह 4 बजे ये घटना हुई थी, जहाँ पर रशिया के सबसे बड़े मिसाइल को इसी फैक्ट्री पर अटैक किया गया। बताया जा रहा है उस समय 500 टन के फ्रोजन फिश जो है वो यहाँ पर रखे गए थे, जिसके बाद वो मिसाइल आने के बाद, लेकिन लकीली यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, जिसके वजह से कोई हानि तो नहीं हुई, लेकिन भारी मात्रा में नुकसान ज़रूर हुआ है। उनसे ये जानेंगे कि कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं। इफ़ यू कैन tell us how many people are working here, how many people are dependent on this factory and where exactly now they are? Людей здесь работало, да, опять вот. 125 человек работало непосредственно на заводе, плюс офис, который реализовал продукцию, плюс водители автомашин, сотрудники логистики, всего 150 человек приблизительно. So it's around 150 people, including the office workers, the drivers, the logistic managers, and the people who actually produced the production of fish. How many people are dependent? Were dependent on this factory? Like, what is there their like livelihood that they were completely dependent on this factory? Yes, this is around 150 people who dependent their lives from the job on that factory. Now, where those people have been taken to? Now all these people are hoping that the government of Ukraine will help this factory to be restored and they will receive their jobs back.
बताया जा रहा है कि यहाँ पर 120-150 लोग जो है वो इस फैक्ट्री में काम करते थे, जो न कि सिर्फ इस फिश सप्लाई को लेकर काम करते थे, लेकिन साथ ही लॉजिस्टिक काम करने वाले हो या फिर एडमिन में हो, ये सभी लोग जो यहाँ पर थे वो सिर्फ इसी फैक्ट्री के डिपेंडेंट पे थे। उनका रोज़ाना इसी फैक्ट्री पे काम करने के बाद चल रहा था। लेकिन अब उनकी सिर्फ उम्मीद यही है कि सरकार जो है उनको लेकर, उनके काम को लेकर इस फैक्ट्री को फिर से रिस्टोर किया जाए। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से अब जो नुकसान इन लोगों ने झेला है, अब उसी नुकसान को, जो स्क्रैप यहाँ पर पड़े हुए हैं उस स्क्रैप को यहाँ से निकाला जा रहा है, जो यहाँ पर जितने भी गार्बेजेस पड़े हैं उसको निकाला जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पर अब साफ सफाई जो है वो इस जगह की जा रही है, क्योंकि इसी जगह के बाद अब लोगों को, जो यहाँ पर 120 लोग जो यहाँ पर कामगार काम करते थे, जो पूरा डिपेंडेंट है, उनका रोज़ाना इसी फैक्ट्री के जरिए चलता था, उसको तो पूरी तरीके से तहस-नहस कर चुके हैं। लेकिन अब सरकार से सिर्फ ये एक उम्मीद बची है कि इस फैक्ट्री को फिर से वो रिस्टोर करे, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करे, क्योंकि उसी के बाद उनको अपनी नौकरी से अपना रोज़ाना जो उनका खाना पीना है वो उनके घर जो है उनके घर चले। उसी उम्मीद से अब लोग एक सेफर साइड पे तो पहुंचे हैं, लेकिन बिल्कुल ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरीके से नुकसान इस पूरे वॉर में, जहां रशिया अपने मिसाइल को लेकर अपने जो है एक मकसद के साथ इस पर आ रही है कि वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेंगे, लेकिन जो आम लोग हैं यहाँ पर, जो रोज़ाना सिर्फ एक दिन की रोटी के लिए कहीं ना कहीं जो काम कर रहे थे, उसी चीज़ों को तबाही करता हुआ रशिया दिखाई दे रहा है। और ये एक साधारण सा एक उदाहरण और एक नई तस्वीर जो है हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। यूक्रेन से वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शाह के साथ अलीशा नायर, रिपब्लिक भारत।